Hello students, in our last video we were discussing about organocatalysis. So what are organocatalysts? Students, those molecules which accelerate the rate of reaction as catalysts called organocatalysts. Now see the definitions. The term organocatalysis refers to a form of catalysis whereby the rate of chemical reaction is increased by an organic molecule, organic compound. Catalysts referred to as an organocatalysts, consisting of carbon, hydrogen, sulfur and other non-metal elements in those type of organic compounds. स्टूडेंट्स, जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उनमें जनरली कार्बन, हाइड्रोजन तो होंगे ही, साथ में सल्फर, नाइट्रोजन बेस्ड इन सब कैटलिस्ट के साथ ही हम वो केमिकल रिएक्शन को ही हम मतलब कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं. तो कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगी, जैसे कि जो नोवेनेजल कंडेंसेशन है उसमें हम जनरली क्या करते हैं, यूज पिरिडीन यूज करते हैं, बट इसकी क्विनीन के साथ रिएक्शन दिखाएंगे. एस्टरिफिकेशन में हम DMAP को यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट. एंड जो हमारा एक और है थायोजोलियम सोल्ट्स की रिएक्शन दिखाऊंगी, जैसे कि स्टेटर रिएक्शन में थायोजोलियम सोल्ट्स यूज होता है ऑर्गेनो कैटलिस्ट की फॉर्म में. Students, there are some organocatalysts examples like biomolecules proline student जो amino acids होते हैं protein, these used for formation of proteins. Phenylalanine, secondary amines, cinchona alkaloids and certain oligopeptides, and there is synthetic catalysis derived from these biomolecules and other than hydrogen bonding catalysts and trizolium salts uses in stator reaction catalyst. आजकल stator reaction जो चल रही है आपके नेट के एग्जाम में भी काफी बार पूछी गई रिएक्शन, उसमें भी हमारा ये जो ट्राइजोलियम सोल्ट्स है ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट ही है. Now we are looking at novenasal condensation. Students, in this synthesis we take carbonyl compounds and unsaturated active methylene groups containing compounds. Generally, students, see the chemical reaction generally we use as a catalyst pyridine, but if we take quinine as a biocatalyst, then reaction rate give excellent yield, excellent production. Okay students, now see the reaction. The novenasal condensation between active methylene compounds and aromatic carbonyl compounds has been developed using quinine as organocatalysts to afford various electrophilic alkenes in excellent yields up to 90%. ओके स्टूडेंट्स, हम जो क्विनीन लेंगे तो हमारा जो रिएक्शन रेट होगा वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें अप टू 90% मिलेगा. और क्विनीन ये जो रिएक्शन ले रहे हैं वो सॉल्वेंट फ्री ले रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें कोई सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहे. हमने कैटालिटिक अमाउंट लिया है 50 मोल%. द रिएक्शन प्रोसीड एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन लेंगे एंड सॉल्वेंट फ्री कंडीशंस लेंगे, एंड दीज ऑल सिचुएशंस आर favored green synthesis. In this green approach, the organocatalyst was recovered and recycled for up to 4 cycles without appreciable loss of activity. इस रिएक्शन रेट में जो हम अगर क्विनीन के साथ ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसमें हमें जो कैटलिस्ट है क्विनीन है वो हमें वापस रिकवर हो जाता है, मिल जाता है. तो इस तरह से जो नोवेनेजल कंडेंसेशन में हम पिरिडीन की जगह क्विनीन करवा के क्विनीन एज अ बायोकैटलिस्ट यूज करके हम इस रिएक्शन में चेंज कर देते हैं और जिससे कि हमारी ग्रीन फेवर्ड सिंथेसिस हो जाती है. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स DMAP एज ऑर्गेनोकैटलिस्ट. स्टूडेंट्स, व्हाट इज DMAP? आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर हियर. This is the DMAP. Name is 4-dimethyl aminopyridine. Okay students, this is DMAP 4-dimethyl aminopyridine and this is the structure.
students, DMAP is a derivative of pyridine and act as acyl transfer agent. एसाइलेशन रिएक्शंस में हम इसका यूज करते हैं. इट एक्ट्स एज एन एसाइल ट्रांसफर एजेंट बिकॉज इट कंटेन्स नाइट्रोजन इन रिंग. ओके, देन नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट होने के कारण इट एक्ट एज गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गेट्स एसाइलेटेड वेरी रैपिडली. कंपैरिजन करें तो एसाइलेशन बाय डीएमएपी इंक्रीज रेट 10,000 times than the pyridine. So students, we take DMAP, we use DMAP as a organocatalyst in acylation reactions instead of pyridine. See the reaction pyridine and देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है वो बहुत इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा. दिस इज द कार्बन, पॉजिटिव कार्बन. यहाँ पे कार्बन के साथ ये लग जाएगा और फिर यहाँ पे इस तरह से सीडल बोर्ड और एल्कोहल आएगा. थोड़ा अच्छे से मैंने अभी ड्रॉ कर दिया है इसे. स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारा DMAP है, इसमें नाइट्रोजन जो प्रेजेंस है वो एक्ट एज अ गुड बेस एक्ट करता है और इजीली पॉजिटिव चार्ज को एब्स्ट्रैक्ट करता है. पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है. एंड यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास यहाँ पे दो जो ऑक्सीजन हैं, इसके कारण यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे अपने लोन पेयर दे देगा और इधर से ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ से एंटिटी इसकी अलग हो जाएगी. सी स्टूडेंट्स, देन द रिएक्शन देखिए यहाँ पे एन यहाँ पे लग गया और यहाँ पे अपना ये डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड है. ओके, और ये RCOO माइनस जो है ये अपना एंटिटी अलग हो गया. एंड देखिए नाइट्रोजन के बॉन्ड्स यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा. इधर ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा. तो जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल इधर आएगा फर्स्ट, और एल्कोहल की जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर्स के कारण से ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन है और यह नाइट्रोजन है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर के कारण से. तो जो ये ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर्स यहाँ पे, मतलब कि एल्कोहल इस ऑक्सीजन से यहाँ लग जाएगा और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे एज अ माइनस चार्ज. सी स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा. देखिए इन दोनों के बीच में जो ये है कार्बन, इन दोनों की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. तो देखिए यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, ये N पे पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू 4 bonds अराउंड हेयर एंड LOH और R या ROH यहाँ पे लग गया. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे अल्कोहल वाले OH के, यहाँ पे जब ये लग गया तो इसके हो गए 1 2 3, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे ये इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ लेगा. क्यों तोड़ लेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एंटिटी प्रेजेंट है ऑलरेडी RCOO माइनस, वो इस हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, तो ये बॉन्ड को इजीली लूज कर लेगा. इसको हाइड्रोजन को इजीली लूज कर लेगा. तो यहाँ पे ये ले लिया. तो यहाँ पे हमारे पास क्या एंटिटी आई? देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गई NO माइनस. N पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, O पे माइनस चार्ज था, OR, H यहाँ से निकल गया है और ये बॉन्ड्स हैं. ओके, ये कार्बन है. अब देखिए इस कार्बन के इधर भी ऑक्सीजन, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर एल्काइल ग्रुप. ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया? RCOO और H यहाँ से इसने ले लिया H. ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा? नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड फॉर्म में आ जाएगा. डबल बॉन्ड फॉर्म में आ गया तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? 1 2 3 4 5. तो नाइट्रोजन को क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो वो यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा. देखिए ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज यहाँ से इधर आ गया डबल बॉन्ड फॉर्म में, और इस कार्बन का जो ये बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा और किस यूज में आ जाएगा? इस नाइट्रोजन के N के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के यूज में आ जाएगा. और यहाँ से हमारे पास देखो क्या मिल रहा है? RCOOR, और यहाँ पे मिल रहा है हमें
वापस से रिकवर्ड हो गया DMAP और RCOH। तो इस तरह से DMAP वापस रिकवरी हो जाती है, एज अ ग्रीन सिंथेसिस फेवर्ड है, कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके वापस हमें मिल रहा है। तो ऐसे एक ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं जिनकी रिकवरी हो जाए, जो हम बैक ले लें उसको, तो और साथ में हमारा यील्ड भी, प्रोडक्शन भी अच्छा हो, तो ऑर्गेनो कैटलिस्ट का ये भी एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से प्रोलीन कैटलिस्ट रिएक्शन है जिसमें कि हम प्रोलीन को 30 मोल% यूज कर रहे हैं और फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना रहे हैं, रूम टेम्परेचर ही लेंगे और 97% यील्ड आएगी। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनो कैटलिस्ट्स के, जैसे कि स्टेटर रिएक्शन है, उसमें जो थायोजोलियम सॉल्ट्स यूज करते हैं। तो स्टेटर रिएक्शन में क्या है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, और थायोजोलियम सॉल्ट को एज ऑर्गेनो कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो हमारे पास 1,4 एडिक प्रोडक्ट जो होते हैं, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी यील्ड में 97% यील्ड में मिलते हैं। तो इस तरह से काफी सारी रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स जिनमें कैटलिस्ट, ऑर्गेनो कैटलिस्ट को हम यूज करके रिएक्शन रेट को एक्सेलरेट करते हैं। नाउ वी आर लुकिंग एट एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनो कैटलिसिस। देयर इज नो नीड फॉर मेटल बेस्ड कैटलिसिस, thus मेकिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रीन केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, मेटल बेस्ड कैटलिस्ट जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, हम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पूरी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम रिएजेंट्स ले रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, तो वो उनकी नीड नहीं रहेगी कंट्रीब्यूशन। अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री अगर में हमने इस ऑर्गेनो कैटलिसिस को यूज किया है, ना कि हमने मेटल बेस्ड कैटलिसिस को यूज किया है। तो देयर इज नो नीड फॉर मेटल बेस्ड कैटलिसिस, दस मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज फॉर ग्रीन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिस्ट्री। व्हेन द ऑर्गेनो कैटलिस्ट इज chiral, as avenue is opened to asymmetric catalysis, for example the use of proline in aldol reactions. Already told you students, proline in aldol reactions is an example of chirality and green chemistry. And next, asymmetric catalysis is a type of catalysis in which a chiral catalyst directs the formation of chiral compounds such that formation of one particular stereoisomers is favored. स्टूडेंट्स, कायरल कैटलिस्ट्स अगर हैं तो वो कायरल कंपाउंड्स को ही फॉर्मेशन को डायरेक्ट करते हैं। देन दस दीज ऑर्गेनो कैटलिस्ट आर स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड्स एंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। दिस इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनो कैटलिसिस। आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स ऑर्गेनो कैटलिस्ट पे शॉर्ट नोट आएगा अबाउट शॉर्ट नोट, गिव शॉर्ट नोट एंड फॉर ऑर्गेनो कैटलिसिस, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये मैटर है। आई विल सेंड यू PDF ऑफ दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।